Jatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today's topic is array multiplier. In yesterday's class, we have discussed about adder, look ahead carry adder, binary adder, 2-bit, 3-bit, 4-bit, n-bit. Okay. Now next is multiplier. What is multiplier? A continuous addition is known as multiplication. For example, 3 into 4, 3 multiplied by 4 is what? 3 plus 3 plus 3 plus 3 means up to 4 times you add 3 in 3 will give you the multiplier. Okay, we have two multiplication methods, array multiplication method and Booth multiplication algorithm. In next class we will discuss Booth multiplication, but today we will discuss array multiplier. The easiest one is the array multiplier. Okay, जैसे आप नॉर्मल कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हो, एनी मल्टीप्लिकेशन कोई भी, लाइक 23 इंटू 74, 23 इंटू 74, उसको हम परफॉर्म करेंगे यूजिंग एरे मल्टीप्लायर. ओके, नाउ इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन, मल्टीप्लायर सर्किट, ब्लॉक डायग्राम एंड समरी. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन. An array multiplier is a digital combinational circuit. Digital combinational circuit. Digital means 0 और 1. Combinational circuit means एक से ज्यादा तरह के गेट्स इसमें यूज होंगे for multiplying two binary numbers by employing an array of full adder and half adder. मैंने अभी आपको बताया that by the addition mechanism we can obtain multiplication. Multiplication को हम addition mechanism से obtain कर सकते हैं. इन सेम मैनर हम array multiplier को implement करेंगे and उससे रिजल्ट चेक करेंगे. This array is used for the nearly simultaneous addition. Simultaneous addition, add, further add and add. Continuous addition से ही हम multiplication को जो है evolve करेंगे. To form the various product terms, an array of AND gate is used before the adder array. Now, what does that mean? कि array of AND gates. Array का मतलब क्या होता है? Combination. ओके, कलेक्शन. बहुत सारे एंड गेट्स यूज करेंगे और एडर यूज करेंगे टू इंप्लीमेंट एरे मल्टीप्लायर. नाउ सी द लॉजिक बिहाइंड एरे मल्टीप्लायर. यू हैव टू नंबर्स a0 a1 b0 b1. a0 a1 b0 b1. जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हो a0 b0 a1 b1 नंबर की, लाइक a0 is 3, a1 is 4. okay, write down this. a0 is 3, a1 is 4, b0 is 3, b1 is 7. okay, a0 a1 b0 b1 इनकी चार नंबर्स की हमने वैल्यू ले ली. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं नॉर्मल. सबसे पहले क्या करते हैं, b0 को a0 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो यहाँ लिखते हैं. लाइक 4 इंटू 3 12, 12 का 2, कैरी गया 1, 1 विल बी द कैरी. फिर b0 इंटू a1, b0 इंटू a1, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो कैरी होगा उसको ऐड कर लेंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b0 a1 प्लस c1. देन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में a0 b0 के नीचे क्रॉस लिखते हैं, a0 b1 एंड a1 b1, और अगर कोई कैरी आएगा तो उस कैरी को फर्दर ऐड करते हुए चले जाएंगे. सो a0 b0 is p0, इसको डिनोट कर दिया p0 यानी कि प्रोडक्ट 0. देन a1 b0 प्लस a0 b1, दिस, इनको ऐड करते हैं. फिर हम a1 b0 a0 b1, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा रिजल्ट, दैट इज योर p1. इन सेम मैनर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो उसको ऐड करके हम p2 ऑब्टेन करते
एंड सो ऑन। इसी मैनर में आप आगे तक जो है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते चले जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज द लॉजिक बिहाइंड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये 2 बिट मल्टीप्लीकेशन है, ये 2 बिट मल्टीप्लीकेशन है। तो हमने नीचे एक ब्लॉक डायग्राम शो किया है। ये ब्लॉक डायग्राम क्या बता रहा है, A0 A1 B0 B1। अंदर यहां पर कोई सर्किट होगा मल्टीप्लीकेशन का, अभी नहीं, हमें नहीं पता क्या सर्किट होगा। लेट एनी सर्किट इज देयर इनसाइड and that circuit will perform the multiplication. Okay, after multiplication you will get these 4 outputs, P0 P1 P2 P3. P3 is carry if generated, P3 is carry if generated. ठीक है, now see this array multiplier circuit. Now it is 4 bit, it is 4 bit. चेक करिए किस तरीके से काम करेगा ये, A0 B0, पहले इनका मल्टीप्लाई होगा A0 B0, देन A1 B0, A2 B0, A3 B0, A3 B0, इन सब का मल्टीप्लाई होगा। फिर एक कैरी अगर कोई जनरेट होगा वो कैरी लिख लिया आपने। ओके, यहां पर क्रॉस नेक्स्ट लाइन A0 B1, A1 B1, A2 B1, A3 B1, कोई कैरी जनरेट हुआ उसको आगे लिख लिया। देन अगेन वन मोर क्रॉस इज देयर, B2 A0, B2 A1, B2 A2, B2 A3, then one more cross is there, B3 A0, B3 A1, B3 A2, B3 A3। ओके, ऐड कैसे करेंगे इसको हम, A0 B0 तो डायरेक्टली ऐसे कैसे लिखा जाएगा, B0 A1 और A0 B1 यानी दिस, इन दोनों को ऐड करके जो सम आएगा दैट विल बी योर Y1। देन नेक्स्ट केस में 3 को ऐड करेंगे, देन 4 नंबर्स ऐड होंगे, देन अगेन 3 2 1 और लास्ट में आगे से कैरी आएगा। दिस इज द सेम मेथड जो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हो, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ सी दिस, दिस विल बी द इंटरनल मैकेनिज्म। ओके, ये जो भी नंबर होंगे ये इंटरनल मैकेनिज्म में परफॉर्म होंगे। लाइक जैसा मैंने ये मल्टीप्लायर का सर्किट बताया आपको, डायग्राम बताया है, ब्लॉक डायग्राम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अंदर जो इंटरमीडिएट वैल्यूज होंगी वो यही होंगी। आपके पास ये जो वैल्यूज हैं P0 P1 P2 P3, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट वैल्यूज, फाइनल प्रोडक्ट वैल्यूज आपके पास यही आएगी। सो आउटपुट यहाँ पर इस केस में भी आपके पास Y0 Y1 Y2 Y3 अप टू Y7 जितने भी बिट का आउटपुट है आपके पास वो लास्ट में आपके पास डायरेक्टली आउटपुट आएगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आपके पास नहीं आएंगे। ओके, नाउ सी A0 B0, इस केस में क्या हो रहा है आपके पास, पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देन सेकंड केस है A1 B0, A1 B0 अगेन मल्टीप्लिकेशन है। सो आपको फर्स्ट लाइन ऑब्टेन करने के लिए, द फर्स्ट लाइन, दिस लाइन, इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको कितने एंड गेट की रिक्वायरमेंट है, 4 एंड गेट्स। ओके, 4 एंड गेट जिसमें B0 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 ये इनपुट कॉमन रहेगी 4 एंड गेट्स में, और A0 A1 A2 A3 ये डिफरेंट इनपुट आएगी चारों एंड गेट की। पहले एंड गेट की जो आउटपुट होगी, देखिए सर्किट नेक्स्ट स्लाइड पर अवेलेबल है, आई विल शो यू द सर्किट, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। A0 B0 इसका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आंसर है, ये फर्दर कहीं और इनपुट में नहीं जाएगा। ठीक, नाउ दिस गेट जो आउटपुट आएगा सेकेंड एंड गेट का A1 B0, इसके साथ एक और एंड गेट का आउटपुट लगेगा दैट इज B1 A0। दो एंड गेट का आउटपुट ऐड होना है, ऐड होने का मतलब क्या है, अब उनको एडर में डालना होगा। ये दोनों के आउटपुट जो है, दो एंड गेट की आउटपुट अब एक एडर में जाएगी और एडर की आउटपुट आपके पास डायरेक्टली आउटपुट में मिलेगी। सिमिलरली दो एंड गेट, उनका आउटपुट एडर में, थर्ड एंड गेट एडर में। अब आपके पास 3 एंड गेट का
आउटपुट एक फुल एडर का इनपुट बन जाएगा और वो उसका आउटपुट डायरेक्टली आउटपुट आएगा। इन सेम मैनर आप आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ सी द सर्किट डायग्राम। दिस इज द सर्किट डायग्राम। ओके, अगर मैं इसको पहले एकदम डिस्क्लोज करता तो आपको लगता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। B0 कॉमन है सारे एंड गेट्स में। स्टार्टिंग में आपको 4 एंड गेट्स चाहिए, A0, A1, A2, A3, and B0 is common in all 4 AND gates. The output of first AND gate is directly supplied to output, directly provided as output. Whereas second line जब ऑब्टेन करेंगे उस केस में आप B1 को मल्टीप्लायर में रख रहे हो, A0, A1, A2, A3. Say this, पहले B0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी लाइन में B0, देन B1, देन B2, देन B3, और हर एक नंबर के साथ A0, A1, A2, A3 हर केस में है। तो आपने पहले सिर्फ B0 अप्लाई किया, देन B1 अप्लाई करेंगे, देन B2 अप्लाई करेंगे एंड B3। अगर ये 4 डिजिट का केस है तो इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली 3 डिजिट होता तो एक स्टेप लास्ट वाला हट जाता, 2 डिजिट होता तो फर्स्ट 2 आते, ओके, 5 होते तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा आगे। ओके, सो अभी हम एन बिट का भी करके देखेंगे एन बिट का कैसे बनेगा। इसको समझिए, B0, this is the multiplier. A0, A1, A2, A3 are 4 different inputs providing to AND gates. AND gate क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। AND gate क्या मल्टीप्लाई करेगा? A0 B0, A1 B0, A2 B0 and A3 B0. A0 B0 is directly provided to result output. Then A1 B0, A1 B0 and इसके साथ दूसरा नंबर कौन सा रहेगा? A0 B1, A1 B0, देखिए A1 B0 and B1 A0, A1 B0 and A0 B1, A1 B0 यानी this one and A0 B1, A0 B1, it means this one. These two are provided to a adder. Okay, इन दोनों को किस में ऐड किया आपने? एडर में डाला। एडर में आपने प्रीवियसली एक कैरी देखी, CI, कैरी इनपुट। बाय डिफॉल्ट कोई कैरी इनपुट नहीं है तो आपने कैरी इनपुट को 0 किया और इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कराया। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, B0 A2 एंड B1 A1, B1 A1 इनको ऐड कराया एंड सो ऑन। लास्ट में चेक किया आपने, कोई सी आउट अगर कैरी मिल रही है तो ठीक है, उसको आगे प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो उसको 0 कर देंगे। इफ देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ कैरी then it will be provided further, and if there is no carry then there is no need of that carry to add on. Okay, अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है तभी तो आप उसको ऐड कराओगे, जिसको कहते हैं हम लाइक कि हासिल आया हासिल गया। तो बेसिकली क्या है, वो कब होगा? अगर आपके पास नंबर बड़ा हो रहा है रेंज से तभी आप उसको कैरी को लेंगे, अगर नहीं है तो फिर कैरी को आगे एक्स्ट्रा लॉजिक देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली अब आपके पास इन दोनों का सम आया था, इस सम को फिर आप फर्दर इस नेक्स्ट लाइन के साथ ऐड करोगे। सो 1 2 3, इस केस में 3 नंबर ऐड होंगे, इस केस में 4 नंबर ऐड होंगे। फर्स्ट टू this sum, this will be added by this, now sum, this sum will be added by this sum, and this sum will be the y3. This sum is the final output. Okay, so in this manner a 4-bit array multiplier works. Okay, next is block diagram of array multiplier. ब्लॉक डायग्राम ऑफ एरे मल्टीप्लायर। देखिए जो प्रीवियस डायग्राम था, अगर आप देखते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपसे ये डायग्राम ध्यान नहीं आ रहा, गलती कर रहे हैं, देन नो नीड टू ड्रॉ दिस वन। ओके, इन दिस यू हैव टू डू व्हाट, आपको चेक करना है कितना इनपुट है और कितने आपके पास आउटपुट लाइन्स आ रही हैं। AI BJ लूप चल रहा है, दो अलग अलग नंबर्स हैं, एक को आप आई से चला रहे हो, एक को आप जे से चला रहे हो। नो नीड टू राइट आई और जे, यू कैन राइट AP BQ, A1 B, A0 B1 B0, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
नाउ इसके अंदर आपके पास जो ये बड़ा स्क्वायर, ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है ना, इस स्क्वायर के अंदर एक बॉक्स के अंदर क्या है, वो ये है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक एंड गेट और एक फुल एडर। नाउ यू सी द प्रीवियस वन, एंड गेट एंड फुल एडर, यही यूज हो रहा है आपके सर्किट में। तो वो एंड गेट और फुल एडर आपने एक सर्किट के अंदर लगाया। हो क्या रहा है, एंड गेट की इनपुट में ए जा रहा है और बी जा रहा है। एंड गेट की इनपुट में, लिसन केयरफुली, एंड गेट की इनपुट में ए और बी जा रहा है। सो आउटपुट क्या आएगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी, multiplication of AB, that is provided to the full adder. FA stands for full adder. A और B as input जा रहा है एंड गेट में, इसकी जो आउटपुट है A और B की जो आउटपुट है, that is multiplication of AB, this is provided into the full adder, 4-bit full adder. Okay, now see this, output of AND gate is provided into full adder. Okay, similarly फुल एडर 3 इनपुट पे काम करता है। एक इनपुट तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन की आ गई, कोई पहले प्रीवियस सम है तो वो भी आप इसमें ले रहे हो, और कोई प्रीवियस कैरी है तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। अगर नहीं है तो 0-0 रहेगा। ओके, लाइक इन दिस केस प्रीवियस कैरी 0 और प्रीवियस सम तो कोई प्रोवाइडेड है नहीं तो वो भी 0 है। फुल एडर की जो आउटपुट है, 2 आउटपुट हो सकती है, एक है सम और एक है कैरी। जो कैरी आपका यहां से निकलेगा वो कैरी अगले नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। देखिए जो कैरी यहां से निकला वो अगले नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले नंबर से जो कैरी निकलेगा वो नीचे आ जाएगा, और जो सम है वो प्रीवियस वाले पे आ जाएगा। जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे, देखिए लाइक दिस वन, एक एक स्टेप हम आगे की तरफ मूव करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, पहले वाला एज इट इज रहेगा, देन सेकेंड वन विल बी एडिशन ऑफ 2, इन थर्ड केस एडिशन ऑफ 3, एडिशन ऑफ 4 एंड सो ऑन। तो आप एक एक करके राइट साइड में मूव कर रहे हैं। इट मींस A3 B0 is added with A2 B1, एक लेफ्ट में आ रहा है। अगर मैं इसको सबको एक के नीचे एक सीक्वेंस में रखूंगा तो मुझे ऊपर वाला जो एडर है उसको एक प्रीवियस स्टेप में लेके आना पड़ेगा। नाउ सी दिस, इसका जो सम है वो P0 आएगा, पहले वाले का जो सम होगा वो P0, दूसरे वाले का जो सम होगा दैट इज P1, ये फुल एडर का जो सम है वो प्रीवियस पे आएगा, this is y0, or you can see this like this is p0, this is p1. Okay, this is p0, this is p1 previous, एक एक स्टेप पीछे चलेंगे हम, एंड इन दिस मैनर यू विल गेट द रिजल्ट। p0 p1 p2 p3 यहां तक मिलेगा, एंड उसके बाद नीचे आपको सब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये है इन केस ऑफ आपके पास अगर 4 बिट है, इफ यू हैव 4 बिट मल्टीप्लायर। तो 4 बिट मल्टीप्लायर कैसे काम करेगा, वो इस तरीके से काम करेगा, उसमें आपके पास इतने गेट्स और फुल एडर्स लगेंगे। ये है 4x4 एरे। एरे होता है ना, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे पढ़ा है आपने, 1 डायमेंशनल एरे, इसको एरे मल्टीप्लायर बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल है। 4x4, 4 बिट के लिए आपको 16 मल्टीप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी, 16 ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी 4 बिट के लिए, 4 बिट ऑफ ए, 4 बिट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट इज समरी। एक बार समराइज कर लेते हैं हमने अभी क्या किया है। एरे मल्टीप्लायर इज यूज फॉर मल्टीप्लाइंग 2 बाइनरी नंबर्स, 2 बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। नाउ एरे मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फुल एडर एंड हाफ एडर। ओके, अभी हमने फुल एडर यूज किए थे बिकॉज हम प्रीवियस कैरी को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियसली कोई कैरी कंसिडर नहीं करना चाहते तो आप हाफ एडर से भी इस सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। 2 बिट एरे मल्टीप्लायर देखोगे, समझोगे तो वो बहुत इजी लगेगा। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते रहोगे, लाइक अगर आपको 16 बिट एरे मल्टीप्लायर बनाना होगा तो वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज उसमें 16x16 आपको कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, फॉर सम टर्म्स एडर्स आर यूज्ड। सम टर्म्स मतलब, सम टर्म्स का मतलब क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर है तो उन दोनों को ऐड करके ही आप रिजल्ट निकालोगे। तो जो सम करोगे, आप ऐड करोगे, उसके लिए आपको एडर की रिक्वायरमेंट है। नाउ टू फॉर्म द वेरियस प्रोडक्ट टर्म्स, अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, जब मल्टीप्लिकेशन निकालनी है तो उसके लिए आप एंड गेट को यूज करोगे। ओके, बिफोर द एडर, एंड गेट बिफोर द एडर। नाउ हाउ इट वर्क्स, लाइक आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए एंड गेट लगाना पड़ेगा, सम निकालने के लिए एडर लगाना पड़ेगा,
एडर से पहले लगेगा एंड गेट मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, array of AND gates is used before the adder. AND gate is used before the adder. Adder यहाँ यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट उससे ऊपर निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर AND gate यूज कर रहे हैं। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एरे मल्टीप्लायर। देखिए 2 बिट एरे मल्टीप्लायर है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। A0 B0 दो इनपुट दिया एंड को, उसके आउटपुट निकाला, वो डायरेक्टली आउट के पास रिजल्ट आ गया। देन A1 B0 एंड A0 B1 इन दोनों को ऐड किया। थर्ड है A1 B1, उसको आपने अलग से लिख लिया। तो अब आपके पास यहाँ पर अगर आप P0 P1 P2 P3 नहीं लिखते तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, A0 B0 एक नंबर है, दूसरा नंबर आएगा A1 B0 प्लस A0 B1, तीसरा नंबर क्या आएगा A1 B1। ना आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन करना है, यू हैव टू ऑब्टेन दिस रिजल्ट, और इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको 1 2 3 4 4 एंड गेट की रिक्वायरमेंट है और दो और गेट की, एक और गेट की, सॉरी एक और गेट की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप इसको ऐड कर लोगे। अदरवाइज आप एंड और की जगह फुल एडर यूज कर लो, उसमें आप कैरी को भी साथ में ले सकते हो अगर बाई चांस कोई कैरी बीच में जनरेट होती है तो, इन दैट केस। ओके, सो अगर कहा जाए तो एरे मल्टीप्लायर कैसे बनता है, एरे मल्टीप्लायर एंड गेट से और एडर की हेल्प से बनता है। एरे मल्टीप्लायर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड एडर, डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ओके, बट कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मींस इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा लगेंगे। अगर आपको 2 बिट का मल्टीप्लाई करना है तो उसमें भी आपको 4 गेट लगाने पड़ रहे हैं, 4 बिट का करना है तो 16 गेट लगाने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा नंबर आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ लॉजिक जो लगाना है गेट्स, वो बहुत ज्यादा रहेगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एक नया मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम आया है, दैट इज बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। Booth's multiplication algorithm. We'll discuss that algorithm in our next class. Okay, so for today आज के लिए यहाँ तक इतना ही रहेगा एरे मल्टीप्लायर। एक बार रिवाइज करिएगा, कोई डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.